अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। Good. मौसम कैसा है आपकी तरफ? यहाँ तो बहुत गर्मी हो गई है। अच्छा, no, it's getting better here as well. Still a little chilly. Just feel cold a bit more than the usual person. तो मुझे मुझसे जरा सा ज्यादा तो नहीं लगती होगी आपको सर्दी। अच्छा इसके बारे में तो मैं श्योर हूँ। सही है, but it's getting better. ओके, हेलो प्रिंसेस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारा टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा, तो आज हम डॉक्टर फातिमा से इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। आज का topic was a specific request from one of our male followers. As a clinician, बहुत अच्छा लगा ये request. Hey, there's not only females but males understanding the fact कि okay, there might be factors जो कि male related हैं and affect fertility. So I really like that request and I would urge कि आप please share करते रहें अपने male members of the family के साथ. We're trying to raise awareness जितना हमसे हो सकता है, ये आपके लिए ही है. So please do share this with people. Now, but we'll get right into it without any further delay. पिछले 2 हफ्ते हमने बात की थी फैमिली प्लानिंग पे, कॉन्ट्रासेप्शन पे, डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए, जो रियल लाइफ केसेस मेरे पास आते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड वी वेंट थ्रू दैट एज वेल. आज के टॉपिक्स हाउ टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ फर्टिलिटी. जिस तरह कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग is an important part of life, इसी तरह fertility is I think a more important part of life than family planning itself, especially आजकल के दौर में जहाँ पे हमारे लाइफस्टाइल्स इतने चेंज हो गए हैं, टाइम्स इतने चेंज हो गए हैं. लाइक वी सेड इन द लास्ट सेशन, शादियां डिलेड हो गई हैं, मर्दों की भी औरतों की भी, तो फर्टिलिटी के चांसेस ऑलरेडी कम हो चुके हैं. And so it's even more important to discuss that in addition to the family planning that we discussed. So for the public, I think the most important part is कि what is fertility? जब हम कहते हैं the word fertility, what do we mean by that? Fertility is basically your ability as a man and as a woman to bear children. मर्द की सलाहियत good quality sperm produce करने की, that is the male part of fertility, क्योंकि उसके बगैर आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते. And woman की सलाहियत good quality eggs produce करने की, regular eggs produce करने की, and then the ability to carry the child as well. That is the basis of fertility. Anything that goes wrong in one of these processes, तो आपका बच्चा लाना फिर मुश्किल हो जाता है. क्या ये फूड के साथ रिलेटेड है somehow? Yeah, and we will discuss this. So सबसे पहले I think जो important बात है वो है mindset पे बात करना मेरे लिए, क्योंकि जहाँ पे knowledge आम नहीं है, especially research based evidence based knowledge आम नहीं है, तो फिर वहाँ blame game खेला जाता है and unfortunately fingers usually औरतों पे point हो जाती हैं कि इसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे. And ये across the globe है, this is not specific to Pakistan or any specific culture, ये across the globe ये situation है. लेकिन जो हमारे पास जो statistics हैं, जो research है, according to that 40% of fertility issues are from men, 40% of fertility issues are from women. So there's equal responsibility for both. ये नहीं है कि this is 70-80% women है as you would think. No, अगर आपको fertility के problems हैं, there's a 40% chance कि this probably is from the man, equal 40% chance that this is probably will be from the woman, and then there's 20% chance कि combined issues हो सकते हैं, या sometimes we don't even find out what is causing it. Investigations करके भी मालूम नहीं होता. और यहाँ पर तो यूजुअली फीमेल्स प्रेफर करती हैं कि इलाज हो जाए, वो जाना चाहती हैं, जितने भी मैंने जो भी केसेस देखे हैं, बट मेल्स कोई इसमें इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद वो एक शेम है एक, या जो भी कुछ कि कहीं अगर मुझ में मसला निकल आया तो फिर लोग क्या कहेंगे, या जितना मैंने रियलाइज किया है, समझा है. The stigma associated with it is too much, and I think families, friends, culture, mindset don't help either, क्योंकि वो बार बार वो ताने की सूरत में बात होती है. आजकल तो खैर एजुकेशन ज्यादा होता जा रहा है. People, male, like you said, this request was from a male, so this in itself shows how much of a mindset has changed for the positive. लेकिन I think every one of us needs to be very careful कि हम इस स्टिग्मा को तो शह नहीं दे रहे. So it's important that we are very careful with our words as well. Right. The reason why I wanted to address the mindset first and foremost is कि जब
एक बंदे पे ब्लेम आती है तो इट कॉजेज स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज नोन टू कॉज प्रॉब्लम फॉर फर्टिलिटी, चाहे वो मर्द के लिए है चाहे वो औरत के लिए. सो यू आर नॉट हेल्पिंग. अगर आप सिर्फ औरत को ब्लेम करो, उसको स्ट्रेस दे रहे हो, तो यू आर नॉट हेल्पिंग योर चांसेस आइदर. इफ इट्स द मदर इन लॉ हु इज डूइंग इट टू द डॉटर इन लॉ, the mother-in-law is not helping. Moving on from the mindset, another important part of all of this is कि fertility के issues and fertility के chances do not start after marriage. Usually ये concept है कि शादी के बाद ही देखा जाएगा इसके लिए. No, for both the man and the female, it starts very early on. जो आपने फूड की बात की, आजकल के जमाने में ये जो हमारे खाने पीने हैं, फास्ट फूड्स हो गए, वी डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग इनटू इट. द वंस दैट वी नो, सॉल्ट बहुत ज्यादा डाला जाता है, शुगर बहुत ज्यादा डाला जाता है, एंड ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है. बाकी जो केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स है वो तो हमें पता भी नहीं होते. सो फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने खाने पीने पे नजर रखें. खाने पीने के साथ रिलेटेड डायरेक्टली आपकी ओबेसिटी है, आपकी वेट है, वजन कितना है आपका, मर्द का भी औरत का भी. दोनों का वजन इज अ नेगेटिव फैक्टर, एन एब्सोल्यूट नेगेटिव फैक्टर. औरत के हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करने के लिए इट्स अ बिग रीजन, एंड मर्द के क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स अफेक्ट हो जाता है नेगेटिवली इफ दे आर ओबीस, if they are carrying more weight. So it's very important that you keep your weight in check. अगर आपको लगता है कि आप वजन गेन कर रहे हैं या कर रही हैं, you need to look into the reasons and start addressing those reasons. Like I said, आजकल वैसे भी marriages delayed होते जा रहे हैं, बच्चे delayed लाए जा रहे हैं. So it's more important कि जो factors आपके control में हैं, आप उनको control करें. Now there might be reasons जहां आपके कंट्रोल में नहीं है obesity, there's underlying medical conditions going on. तो डॉक्टर को रुजू करना फिर इम्पोर्टेंट है कि आप वक्त पे करें, ये नहीं कि मैं शादी के बाद फिर इसको देखूंगी. These are factors that you need to address from early on. ये कौन से फैक्टर्स होंगे कि मतलब हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं कि ये फर्दर हमको इफेक्ट कर सकती है ये चीज फर्टिलिटी में शादी के बाद? हाँ, so in women it is actually quite straightforward. अगर आपके periods irregular हैं तो it means आपकी ovulation affect हो रही है, and that's why you need to go to a doctor. Especially अगर आपको पता है कि आपकी शादी साल, 1.5 साल, 6 महीने में होने वाली, you need to get that cycle regulated. Now, with regards to this, it's important to understand what ovulation is. We hear it thrown around कि ovulation है, ovulation tracking करो, ovulatory period को देखो, ovulation window. पिछले कितने सेशंस में मैंने कई दफा ये वर्ड यूज किया, और आज मुझे ख्याल आया कि people might not even know what ovulation is, or at least वो जो scientific mechanism behind it है वो नहीं पता होगा. So I wanted to bring that up. So ovulation वो इवेंट है जहां ओवरी से एग रिलीज होती है, और इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब ये रिलीज होती है, एंड इट रिलीजेस आपके ब्लीडिंग के आखिरी दिन से लेके 5 से 7 दिन बाद इज योर ओव्यूलेटरी डे. आपको ओव्यूलेशन उन दिनों में होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका ट्रैक रखें, बिकॉज ये जो विंडो है आपके पीरियड के स्ट्रेट बाद टू दो 7 days, इन दिनों में अगर आपके बच्चों के मसले हैं, you should be having intercourse every 1 to 2 days अपने chances increase करने के लिए. Now this is when you have regular periods, हर 4 हफ्तों बाद अगर आपको periods हैं. अगर आपके periods irregular हैं, जो हम बात कर रहे थे जिससे ये बात stem हुई है, कि अगर आपके periods irregular हैं, it means कि आपकी ovulation या हो नहीं रही या irregularly हो रही है. So that is why you need to go to the doctor and get your cycle regulated, ताकि आपकी ovulation every महीने हो, आपको पता हो कि ओके ये मेरे दिन है, फर्टाइल दिन है, एंड इन दिनों हमने कोशिश करनी है इंटरकोर्स के लिए. ठीक है, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट. ब्लीडिंग जिस दिन एंड हुई है उसके 5 to 7 days बाद ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है. ओव्यूलेशन का डे है. ओव्यूलेशन इज बेसिकली 1 day गेम है जिसमें एग रिलीज होती है. ओके ठीक है, तो यानी कि 5th या 7th डे पे हाँ
तो एडवाइस हम ये करते हैं कि आप पीरियड के स्ट्रेट बाद टू 7 डे, वो जो एक हफ्ता है पीरियड के स्ट्रेट बाद का, उसमें आप एवरी 1 to 2 days इंटरकोर्स करें, सो आपके चांसेस ज्यादा हों, क्योंकि स्पर्म जो है दैट स्टेज इन द बॉडी फॉर 4 to 5 days. It can stay alive for 4 to 5 days. एंड ओव्यूलेशन फिर उस दौरान जब भी हो, 5वें दिन हो, चौथे दिन हो, 7वें दिन हो, वो 1-2 दिन के लिए एग भी सर्वाइव करती है. सो इट इंक्रीजेस इंप्रूव्स योर चांसेस. वो जो हमने कंट्रासेप्शन में बात की थी कि ये विंडो अवॉइड करें, वो इसी वजह से हमने बात की थी, क्योंकि दिस इज योर हाईएस्ट चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट. मैं आपको ये दिखाऊं सनोबर. आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस एक्चुअली, आई एम यूजिंग अनदर गैजेट टुडे. दिस इज द यूट्रस. ये फलोपियन ट्यूब है जिसके थ्रू एग गोज, एंड दिस इज योर ओवरी. अब ये जो स्मॉल आपको रप्चर नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज योर एग दैट हैज रिलीज्ड. ये ओवरी है और ये एग रिलीज हो गई है, और फिर ये जाती है थ्रू द फलोपियन ट्यूब. ये इसके थ्रू जाएगी एंड इट विल कीप गोइंग. यहाँ पे पहुंच के स्पर्म यहाँ पे मीट करता है. So sperm over uterus में नहीं मीट करता, sperm meets the egg over here. ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं, जो प्रेगनेंसी वूम के बाहर हो जाती हैं और कहते हैं कि ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई है, वो इसलिए कि यहाँ पे प्रेगनेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है. अब होता ये है कि स्पर्म यहाँ मीट करता है. फर्टिलाइजेशन मीन्स मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड द एग इन वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी. फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, दे मूव हियर, और ये जो आपको व्हाइट सा डॉट नजर आता है, तो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है, और फिर यहाँ से प्रेगनेंसी ग्रो करती है. ठीक है. ये साइमा कह रही हैं द एग स्टेज विजिबल फॉर अबाउट 12 to 24 hours only after ovulation. Viable. हाँ, yeah. So egg only stays viable for that period. Sperm can stay viable for up to a few days, 4-5 days. Right. अगर आपको पेनफुल पीरियड्स हैं, बहुत सिवियर दर्द है, तो इट मीन्स के देयर इज अ सस्पिशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, तो वो आपको ठीक करना है शादी से पहले. सो अगर पीरियड्स के साथ रिलेटेड कोई भी इशू है, तो औरत के लिए ये आसान है कि उनको समझ आ जाए कि ओके दिस माइट कॉज मी प्रॉब्लम्स इन फर्टिलिटी, और मुझे ये इलाज करना है इसका. मर्द का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. देर आर सर्टन कंडीशंस मर्द में, जहां अगर उनको कोई पेन हो रहा है नीचे, उनको लंप्स हैं, उनको स्वेलिंग है नीचे, तो फिर तो ऑब्वियस है कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू हैव दैट ट्रीटेड. लेकिन अगर आपको कोई पेन नहीं है और कुछ नहीं है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर के आपने अपने लाइफस्टाइल को देखना है. स्मोकिंग, सिगरेट, टोबैको, ड्रग्स, ये सारे अफेक्ट करते हैं स्पर्म के क्वालिटी को. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. वेट की हमने बात की कि आप अपना वेट कंट्रोल में रखें. एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मर्द के लिए हीट is as harmful as all these other factors. The reason why testicles are outside of the body is because they are very prone to heat. So even 1 degree C rise in your temperature of the scrotal area can start affecting sperm quality, and especially if this is repeated and long term. And when we talk about heat, it doesn't mean anything major. लैपटॉप काफी गर्म होता है, तो अगर आप लैपटॉप अपने ऊपर आपने रखा हुआ है for 3-4 hours long term, this can cause problems. So ensuring के आपने tight clothes नहीं पहने हो, not staying seated for long periods of time, आप दरमियान में उठते हो, hot baths, saunas जो हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन any of these events, processes where the body temperature can rise or the temperature of the scrotal area can rise, then आप उसको avoid करना चाहिए. मेरे ख्याल में इसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं चाहती कि this can be something damaging, but it is. ये तो नई नई बातें पता लग रही हैं. ओके, Simon is asking how long is the sperm production cycle? Thank you for asking it, because it's related to this as well. So the sperm production cycle is around आपके 3 महीनों तक है. अब होता ये है कि हमने अब बात की हीट की वजह से आपके कोई प्रॉब्लम हुआ है, लास्ट
सेशन आपने कैंसर के मुतालिक पूछा था कि अगर किसी हस्बैंड ने कैंसर की ट्रीटमेंट ली है या कैंसर हुआ हो, सो अगर आपकी स्पर्म क्वालिटी या स्पर्म प्रोडक्शन किसी भी वजह से अफेक्टेड हुई हो, इट्स गोइंग टू टेक 3 months नया साइकिल शुरू होने में, क्योंकि वो वाला साइकिल तो अफेक्टेड हो गया है। तो आपको अब 3 महीने लगेंगे अगला अपने आप को ठीक करने में और अगले साइकिल को प्रोड्यूस होने में। सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ने पूछा है, क्योंकि उस साइकिल में the chances are that your fertility might be affected. You need to now work on this period and try to improve the production in the next cycle in the next 3 months. ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, बट आपने आंसर किया है तो अब मुझे समझ आ रही है कि ओके इसका क्या मतलब है। या सही है ना। एज की बात कई दफा मैंने ये की है कि 30s में आजकल मैरिज हो रहा है। द रीजन व्हाई आई कीप रिपीटिंग दैट इज कि हाईएस्ट फर्टिलिटी के चांसेस हैं दोज आर इन योर 20s। बाय द टाइम यू हिट योर 30 आपकी एग्स प्रोडक्शन क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अफेक्ट हुए होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। 35 में प्रोसेस और भी फास्ट ट्रैक हो जाता है, रैपिड हो जाता है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इफ यू नो दैट योर चांसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इज गोइंग टू बी डिलेड फॉर वट एवर रीजन, या तो इफ यू कैन अफोर्ड तो एग्स फ्रीज करें, और या ये है कि फिर शादी को ज्यादा डिले ना करें, विच इज इजी फॉर मी टू से एंड वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी फॉर मी टू से। और या ये है कि फिर यू हैव टू मेक श्योर कि यू वर्क ऑन योर हेल्थ। ये सेशंस हम इसलिए कर रहे हैं टू रेज दिस अवेयरनेस। We never think about it in this way, that this is something that needs active planning and strategy. You can carry on living ignorance mein, andhero mein, and then by the time that time comes, you're pointing fingers without realizing ke actually reason kya hai ye sab hone ke liye. And some of us, you know, my age hai, koi aur hai, some of us have passed that period, but at least through this knowledge we can teach our younger ones. हम सबके family members हैं, मर्द भी औरत भी, so we can at least make them aware. Sanobar, thank you for arranging this session. आप तो मुझे थैंक यू कह रही हैं, बट बेसिकली हमको थैंक यू आपको कहना चाहिए कि आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से बीइंग अ डॉक्टर इतना टाइम निकाल लेती हैं कि हमको इस सब के बारे में इतनी अवेयरनेस दे रही हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे अभी एक चीज़ याद आ रही है। मैंने ये इंस्टाग्राम पे ही कोई पोस्ट पढ़ी थी कि कोई रिसर्च हुई है, ये जो कहते हैं ना कि मेल्स के तो ओल्ड एज तक ये बच्चा पैदा कर सकते हैं, बट औरत को मसला है। तो वो कह रहे थे कि चूंकि मर्द के स्पर्म का क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है इसलिए बच्चा नहीं पैदा हो सकता, औरत तो किसी भी उम्र में सही बच्चा पैदा कर सकती है। तो आप इस पर जरा लाइट शेड करें कि ये सही बात है या नहीं है, क्योंकि इट वाज समथिंग वेरी न्यू। इन जनरल आजकल के जमाने की मैं बात कर रही हूँ। हमारे जिस तरह के लाइफस्टाइल्स हो गए हैं, दोनों मर्द औरत दोनों के the ability to reproduce is becoming negatively impacted by the way we're living. Our foods, our clothing, our jobs, our sedentary lifestyles, we need even more active input after our health. So women ke मामले में the quality and quantity is affected by their age. Mard ke मामले में it's their lifestyles more than the age. But start of this session we said 40% chances of your infertility is from the male side and 40% can be from the female side. I know on Instagram they pitch one against another and there is this whole game here. Lekin in general the statistics are that there's equal chances of causative factors from both men and women. The couple has to work as a team. That's the bottom line of it all. This is going to be a team effort. Na aapki biwi ye akele Whilst talking about lifestyle factors, one important factor is folic acid, जो आजकल काफी लोगों को अब पता है, they're aware. लेकिन if you are getting married, आपकी शादी को 3-6 महीने जब जितने भी हैं, you need to start taking folic acid. बड़े आराम से मिल जाता है over the counter. It's not expensive, it doesn't cost a lot. Folic acid you have to start taking. As a woman, आपने अपने शुगर को कंट्रोल करना है, शुगर इनटेक को, और आपने फॉलिक एसिड लेना है. If you do nothing else, just these two, that would help a lot in making sure that your child is healthy.
that your pregnancy is healthy. Okay, question. What is folic acid? Thank you for asking that question. I'm sorry, sometimes I don't realize that this is not common knowledge. So folic acid ये एक विटामिन है जो हमारे बॉडीज को जरूरत होती है, और जो डेवलपिंग फीटस है, जो मैंने अभी दिखाया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमल ठहरता है, उसके लिए, उस न्यू फीटस के डेवलपमेंट के लिए दैट फॉलिक एसिड, वो पहले 4 हफ्ते जब आपको पता भी नहीं होता यू आर प्रेग्नेंट, यू ओनली गेट टू नो व्हेन यू मिस योर पीरियड, राइट? लेकिन आपका जो प्रेगनेंसी है वो यूजुअली 2 to 4 वीक्स पहले से ठहर गई होती है. प्लीज डू आस्क मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. सो आपके पीरियड्स हो गए, उसके स्ट्रेट हफ्ते बाद ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुई, एंड सो उस फर्टिलाइजेशन के पीरियड में यू नीड फॉलिक एसिड. अब आपको नहीं पता प्रेगनेंसी का, बाय द टाइम नेक्स्ट पीरियड डिले हुआ तब आपको पता चला है. उस वक्त तक बेबी इज ऑलरेडी 4 वीक्स ओल्ड. वो जो 4 वीक्स है जिसमें आपको नहीं पता कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, दैट इज व्हेन यू नीड फॉलिक एसिड. सो इफ यू स्टार्ट योर फॉलिक एसिड आफ्टर यू बिकम प्रेग्नेंट, it's not going to help the baby much. You need your folic acid from the day of fertilization. यानी आपके periods के straight 7 दिन बाद का जो time period है जहां पे sperm and egg मिलते हैं, that is when you need your folic acid, and that's why you need at least 3 months पहले से आपने start किया हो. So आपकी शादी अगर हो रही है दिसंबर में, आप अभी से folic acid start कर लो. It's not going to do you any harm. See, this is the kind of thing. ये चीज पता नहीं होती है लोगों को. जब प्रेग्नेंट हो जाने के बाद जाती हैं औरतें डॉक्टर के पास, उसके बाद फॉलिक एसिड उनको लिखा जाता है, वो फिर लेना शुरू करती हैं तब. इसलिए मैं दोबारा सिखाऊंगी, डॉक्टर फातिमा के पास अपने आप को रजिस्टर कराएं ताकि वो आपको ये सारी बातें पहले से बताएं. कितनी माइन्यूट बात है और कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल है ये कि पहले से शुरू करना है. Yeah, unfortunately, this is something that we doctors don't get to say to the patients, and patients को obviously वो उनको तो पता नहीं होता. अच्छा, अगर किसी को right away बेबी नहीं पैदा करना है से, तो फिर तो वो फॉलिक एसिड ना भी लें तो फिर खैर है. बेस्ट ये है कि आप वो 400 माइक्रोग्राम वाली फॉलिक एसिड थ्रू आउट ले लिया करें. इवन अगर आपने बच्चे नहीं भी लाने, 400 माइक्रोग्राम के फॉलिक एसिड से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला. ओके, ये कह रहे हैं कि इनकी प्रेगनेंसी के 2 months बाद इनको फॉलिक एसिड सजेस्ट की गई. और दूसरा क्वेश्चन है, कैन समवन बी एलर्जिक टू फॉलिक एसिड? इज दैट अ थिंग? You can be allergic to every medication. It might not be just the folic acid itself. जो tablet को बनाने में जो preservatives use होते हैं, जो additives use होते हैं, you might be allergic to those things. लेकिन in my career, 15-20 years तो हो गए मुझे as a doctor, I've never come across anybody who's allergic to folic acid. But yes, theoretically, you can. एक और जो nutrient है, जो important है, मैंने पहले भी बात की और अब दोबारा से, iron, folad. We as South Asians, we are prone to anemia. There's a number of reasons. So अगर आप married हैं या आपकी शादी होने वाली है, फीफॉलविट के नाम से जो टैबलेट्स मिलते हैं उसमें आयरन भी होता है, उसमें फॉलिक एसिड भी होता है, उसमें बाकी विटामिन भी होते हैं. सो यू कैन स्टार्ट टेकिंग दोज. प्रेग्नाकेयर के नाम से भी अवेलेबल हैं, तो वो आप लेना शुरू कर दो. जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं जल्दी से एक और बात कर लूँ जो कोई इम्पोर्टेंट है, वो है व्हेन टू सीक हेल्प. सो आपकी शादी हो गई है, कब आप डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, कितने अरसे बाद. So if you're younger than 34 years old, then we do know that it can take up to 1 year for you to become pregnant. So try for 1 year and then seek help. And if you are around 34 and above, then 6 months इंतजार करें, 6 months try करें अपने तरफ से, ये lifestyle change कर लें, खाना पीना, smoking, weight, ये सारे चीजों पे control कर लें. Like we said, regular intercourse is considered as 3 times a week, so every other day. वो जारी रखें. उसके बाद अगर 6 months of regular intercourse के बाद आपके बच्चे नहीं हो रहे, then seek help. उससे पहले फीफॉलवेट लेते रहें. फीफॉलवेट लेते रहें. If you have
ऑब्वियस प्रॉब्लम्स तो फिर तो आपको डॉक्टर से रुजू करना है. लेकिन अगर सब कुछ आपका पीरियड भी रेगुलर है, आप अदरवाइज हेल्दी हो, देन ट्राई फॉर 1 year if you're below 34 years old, or 6 months if you're above 34 years old. And if you still can't become pregnant, then get in touch with a doctor. And I know this is obvious, but I have to say this, which you said even in the beginning, that you both have to be checked. Usually होता ये है कि फीमेल आ जाती है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं और मेल आने को तैयार नहीं होते. And this is unfortunately very common. So आप दोनों की इन्वेस्टिगेशन होगी. फैमिली में बदनाम भी औरत ही हो रही होती है, डॉक्टर के पास भी औरत ही जा रही होती है. You both need to visit a doctor. You दोनों की investigations. Otherwise, you're delaying the process. Like I said, there's equal chances कि problem मर्द में भी हो सकती है. So you're delaying the whole process for no good reason. You both should visit a doctor together, ताकि investigation एक ही वक्त पे जारी हो सके दोनों की. एक मिथ है जो मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ और किसी हद तक तो एड्रेस हो गया ये टाइम पीरियड की जो मैंने बात की. द मिथ इज इफ यू आर हेल्दी, अपेरेंटली हेल्दी हो तो फौरन बच्चा हो जाना चाहिए, which is not true. Like I said, it can take up to a year for you to have a baby. So don't stress yourself. प्रेशर में ना आए. हाँ, ये तो इसके ऊपर तो और सेशंस भी करने पड़ेंगे कि वो प्रेशर में कैसे ना आए जब पैदाइशी प्रेशर दिया गया है औरत को इधर. सही बात है. We'll wrap things up for this session. Thank you so much, डॉक्टर फातिमा. इतना आपने हमको टाइम दिया. आज तो हमने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया. A very good session, very informative and addressed in a very dignified way. Thank you.